starting your unit 1 electrostatics of class 12th physics. If you see, it is made up of two words, electro and statics. Now if we see electro means basically your charge, means something related to charge, and statics, the literal meaning is stationary or rest. So we say here we are dealing with the charges at rest, means the kind of effect the charges at rest can produce or they can experience. Now before coming to that, the question arises, what do you mean by charge? So we say charge is the basic property of a body because of which it can exert or experience the electric and magnetic forces. Like for example in class 6 to 8, when we have studied the static electricity, means just the introduction you can say. So there we have studied a glass rod rubbed with silk. Then it acquires the property of attracting the small bites of papers. So we say in this case it is getting charged. So that, what do you mean by that? Now it is applying the electric force on the small bites of paper because of induction. So that way we say glass rod acquire positive charge and silk acquire the negative charge. So which body will acquire the positive, which body will acquire the negative? It depends upon the affinity, electron affinity we can say of the body. If the body is having more affinity for electrons, it will not easily leave the electrons. So that's why here we can say that silk is having more electron affinity as compared to glass. Now next we come to your properties of charges. अब you know कि charge, if you can recall, in class 10th we have studied कि we can write it as I into T, where I is the current flowing in the circuit and T is the time taking. So from this only we take out the unit. The unit will be your, you can say, ampere second, and your dimensional formula of charge will be, at times we write it I into T, ठीक, or in some books you will get A into T, where T is the standard dimensional formula for time and A we are taking for current. Now next comes the basic properties of charges. So next, so if we say properties of charges, so first you can say, if we can recall from the previous classes, we have studied that there are two kinds of charges. Number one, we can say types. So we are having positive charge or negative charge, right? So we say like charge which are similar to the charge acquired by glass rod, they are positive, and which are similar to the charge acquired by the ebonite rod, they are negative. So best example for positive charge, we can have proton, we can have alpha particle, which is basically the doubly ionized helium atom, is the nucleus of helium atom we can say. And number 3 is your deuteron, that is your isotope of hydrogen, means the nucleus of that deuteron we can say, the doubly ionized helium. Up next, negative charge, the best example is electron, and the value of its charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Now this electron is very very important, and these terms proton, alpha and deuteron, these terms we will see in electrostatics also. We have to use their mass and the charge, and in the magnetism also, at time in the dual nature also. So we will take these, that's why we have taken these three main type of positive charges. इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, but we have taken the examples which we have to use frequently. Maybe in electrostatics, maybe in magnetism, maybe in dual nature, that way, and atoms and nuclei also. Now next we say, so first property क्या आ गई कि there are two kinds या two types, positive and negative. सेकेंड थिंग हम लोग कहते हैं कि अब लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी के ऊपर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि दिस इज न्यूक्लियस, वी आर हैविंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इसके आसपास जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब न्यूक्लियस हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. तो इन पे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एक फोर्स लगेगा, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स.
अब फोर्स का क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से वैसे वैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो उस केस में हो सकता है जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो हम रब करते हैं टू बॉडीज़ को, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द बॉडी। कि लाइक अगर ग्लास रॉड है एंड हमारा सिल्क है, तो ग्लास रॉड से हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सिल्क पे, बिकॉज सिल्क की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉपर्टी लग जाएगा कि मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं लेकिन ग्लास से हमारे सिल्क पे। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमारा कंजर्व्ड है। एंड थर्डली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही डेवलप होगा। इट मीन्स अगर हमारे पास कहीं भी कोई भी सिस्टम है आइसोलेटेड, तो वी कैन नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज, क्योंकि ओवरऑल चार्ज हमने कह दिया बॉडीज न्यूट्रल है, तो बाद में भी इलेक्ट्रॉन अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट चार्ज 0 होगा। लाइक अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ग्लास से सिल्क पे, तो ग्लास पे हमारा 5e का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड हमारा सिल्क पे -5e का चार्ज आ जाएगा। तो नेट हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसीलिए अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या आती हैं कि पहली सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, राइट, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि जो बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। n इज एनी इंटीजर वी कैन टेक, ठीक। अब उस केस में हमने बिलोंग का साइन बना दो सही से, दिस वन, कि मीन्स n इज एनी इंटीजर। तो अगर बॉडी इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन तो इट विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स देन नेगेटिवली चार्ज, बट इट इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट मीन्स अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी स्पेसिफिक वैल्यूज़ पॉसिबल है, लाइक e, 2e, 3 दैट वे। नेगेटिव में गया तो -e, -2e, -3 दैट वे। वी कैन नेवर हैव 3.5e, राइट। तो whenever we are having the specific values of a quantity, then we say कि that unit quantity is quantized। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मीन्स कि लाइक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दैट वे। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है कि जो लाइक चार्जेस हैं रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। अब यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखनी है, छोटे क्लासेस हम ये पढ़ते आ रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हम लोग के मैग्नेट्स में भी थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि व्हेन वी आर सेइंग कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो कब पॉसिबल है, जब दोनों बॉडीज़ का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली सेम रेंज का। अगर एक बॉडी पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लार्ज चार्ज है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हो सकता है लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट करने लगे, ठीक। उसके लिए हम लोगों का एक छोटा सा वीडियो है शॉर्ट्स में इस चैनल पे पड़ा हुआ है, यू कैन सी दैट कि वेयर वी हैव शोन कि वी आर हैविंग 2 मैग्नेट्स। एक हमारा न्यूडियम मैग्नेट्स है जो बहुत पावरफुल होता है, दूसरा हमारा बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट का चाहे हम नॉर्थ पोल लेके आए या साउथ पोल लेके आए टुवर्ड्स द न्यूडियम, बोथ विल बी अट्रैक्टेड। तो वहाँ ये प्रॉपर्टी हमारी वायलेट हो रही है। पर यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जर है सेम रेंज का है। रेंज मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चार्ज को हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर पाए एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे हम लोग कहते हैं मास ऑफ एप्पल एंड मास ऑफ अर्थ, तो उस केस में क्या है कि एप्पल का मास इज नेग्लिजिबल, हमने कह दिया 100 ग्राम का या 200 ग्राम का, और अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg। तो अगर उस लेवल का डिफरेंस हुआ तो उस केस में हमारे लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ इस पूरी यूनिट के लिए एक इसलिए बताया कि हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। नहीं, अगर ऐसा कुछ है कि जहाँ मेजर डिफरेंस है तो वो अट्रैक्ट नहीं, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है। लेकिन इस पूरी यूनिट में जो इन जनरल भी हम लोग लेकर चल रहे हैं कि उनका मैग्नीट्यूड रफली सेम ऑर्डर का है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट, इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आती है ये तो सब चल ही रहा है। अब हम लोग कहते हैं हमारा चार्ज स्टेशनरी है कि मूवेबल है। अगर हमारा स्टेशनरी चार्ज है तो इट कैन एक्सपीरियंस only electric effects, means it can experience electric force, it can apply electric force, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई मैग्नेटिज्म का नहीं होगा।
लेकिन अगर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला चार्ज है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then it can have both electric and magnetic effect. Means it can experience electric force, it can apply electric force, it can experience magnetic force, it can apply magnetic force. इसके ऊपर पूरा यूनिट है हम लोगों का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट. थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट है, अगर हमारा चार्ज इज मूविंग with increasing velocity, increasing or decreasing velocity, it means हमारा accelerated charge है. then ये कोई ना कोई हमारा रेडिएशन को एमिट करेगा, एमिट रेडिएशंस. इसके ऊपर भी हमारा एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इसलिए हम लोग कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए. इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि इस चैप्टर के हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सेकेंड कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. तो हमारा क्या है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एंड उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो हैं, ठीक. नेक्स्ट हम लोग कह देते हैं चार्ज हमारा कंजर्व्ड है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज स्केलर क्वांटिटी है. सेकेंड, हमारे पास एक नंबर ऑफ चार्जेस हम डिफरेंट बॉडीज़ के थ्रू से प्रोवाइड कर दें एक बॉडी को, तो हम एज ए स्केलर हम ऐड कर सकते हैं विद साइन कि पॉजिटिव नेगेटिव दैट वे, ठीक. तो नेट चार्ज हमारा बॉडी पे क्या हो जाएगा कि क्यू एस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट वे हम निकाल सकते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी, बट विथ साइन पुट करना पड़ेगा, राइट. अब नेक्स्ट हम लोग की प्रॉपर्टीज आती है इसके बाद. अब हम लोग कहते हैं कंडक्टर. अब नेक्स्ट अगर हम टर्म पे जाएं तो हमारा नेक्स्ट क्या जाता है, कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होता है, बेसिकली हम लोग कहते हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, जो हम लोग दिखाते हैं कि न्यूक्लियस, इधर हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया ऑर्बिट में, ठीक. तो यहाँ P और N है, ये इलेक्ट्रॉन. हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें, अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे. तो क्या होगा, जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उन पर हमारा फोर्स बहुत कम होता है. तो अगर उनको कहीं से भी हमें एनर्जी मिल जाए तो वो आराम से फ्री हो जाएंगे. और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली इस पूरे लैटिस के अंदर, मीन्स जैसे लाइक अगर हमने कह दिया कॉपर, तो एक मेटल है, उसके पूरा जो पीस हमने लिया, लाइक अगर हमने कह दिया इतना बड़ा पीस हमने कॉपर का लिया, तो उसके अंदर आराम से वो कहीं भी घूमते फिरते रह सकते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, उसके अंदर आराम से घूमते फिरते रहेंगे. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. जो इनर ऑर्बिट्स के हैं वो उस एटम के साथ बंधे हुए हैं, तो दे आर कॉल्ड योर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. तो कंडक्टर्स में बेसिकली क्या है कि दे आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा, अगर अब हमने कंडक्टर को चार्ज दिया, लाइक हमने कह दिया ये कंडक्टर है, स्फेरिकली मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, तो क्या होगा अगर हमने यहाँ पे चार्ज दिया, लाइक पॉजिटिव चार्ज दिया, तो क्या होगा, कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है ना, उस बॉडी के अंदर भी फ्लो कर सकता है. तो क्या होगा, अब नॉर्मली क्या है, सारे पॉजिटिव है, हमने चार्ज दिखाया सिंपली, तो क्या होगा, वो रिपेल करेंगे तो दूर दूर भागेंगे. दूर दूर भागने में क्या ऑप्शन हो सकता है कि सिर्फ सरफेस पे आ जाए. तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ सरफेस पे आ गए और अंदर से गायब हुए. तो इसका रीज़न हम लोग का बाद में भी आएगा, ठीक है. तो दैट वे वी से कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस पर चार्ज हमारा हमेशा सरफेस पे लाई करेगा. नेक्स्ट क्या है, हमने कह दिया, तो मेटल्स जो है हमारे, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स. तो ये हमने कह दिया मेटल्स. तो यहाँ पे हमने कह दिया चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक. नेक्स्ट आ गया हमारा इंसुलेटर्स. अब इंसुलेटर्स में क्या है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल है नहीं, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स अब ये कंडक्ट हमारा जो इंसुलेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता. तो जब नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने एक इंसुलेटर को हमने चार्ज दिया तो ये यहाँ पे अगर थे तो जहाँ पे भी हमने दिया वहीं पे बने रहेंगे, ठीक है ना, वहाँ से, क्योंकि वो हिल ही नहीं सकते, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स.
एटम्स के साथ बाउंड है सब कुछ, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जहाँ हमने दिया, अब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से दिया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म दिया तो नॉन यूनिफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, जबकि कंडक्टर्स में सिर्फ सरफेस पर रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले क्या हो सकता है कि नंबर 1 बहुत सारे मेथड हैं कि हमें बस फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर नॉर्मल केस में क्या होता है कि कोई भी हमने सब्सटेंस लिया, इंसुलेटर है या मेटल है, जो भी है वो हमारा क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो फ्रीली मूव कर रहे हैं ना मेटल में भी, तो वो इलेक्ट्रॉन है तो उस सब्सटेंस के अंदर ही ना। तो इन जनरल अगर हमने ये लेके चले कॉपर रॉड, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं बाउंड पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्जिंग में पहला मेथड क्या हो सकता है कि किसी तरह अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, तो पहला मेथड क्या होता है, बाय फ्रिक्शन, कि हमने 2 बॉडीज़ ली, जैसे हमने कह दिया ग्लास रॉड एंड सिल्क, उनको रब किया। रब करने में हम लोग क्या कह रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो हीट जनरेट हुई। उस हीट से क्या होगा, जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले जो हम लोग दिखा रहे थे, ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे एनर्जी मिल जाएगी और वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर देंगे। तो पहला मेथड क्या हो गया, बाय फ्रिक्शन। उस केस में जिन 2 बॉडी को आप रब करोगे तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी जिससे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, दूसरी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगेन दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमने चार्ज क्रिएट कर दिया या हमने चार्ज डिस्ट्रॉय कर दिया। नो, ओरिजिनली भी हमारे जो ग्लास रॉड एंड सिल्क लिया न्यूट्रल थे, फाइनली भी नेट चार्ज 0 है, तो हमारा कहीं भी कोई लॉ वायोलेट नहीं हो रहा। तो पहला मेथड क्या हो गया, फ्रिक्शन। दूसरा हमारा क्या है, हमने कह दिया हीटिंग, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। ठीक, थर्मियोनिक एमिशन में हमने क्या कहा कि हमने बॉडी को हीट किया, हीट के थ्रू हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। तो अगेन वहाँ पे भी बॉडी जो बचेगी हमारा, अगर हम मेटल लेकर चल रहे हैं तो नॉर्मली मेटल्स को ईजिली करा सकते हैं। तो अगर ये मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। बट वो जो नेगेटिव चार्ज है कहीं ना कहीं सराउंडिंग में है, तो अगेन हमने क्रिएट नहीं किया, मतलब सिस्टम में है। ठीक, थर्ड हमारा क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस पे भी पूरा एक चैप्टर है हम लोगों का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई हमने मेटल लिया जिस पे हमने लाइट डाली सूटेबल फ्रीक्वेंसी की यहाँ से, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे एमिट होते हैं, अगेन हमारा मेटल पॉजिटिव हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा एक पूरा चैप्टर है, थर्मियोनिक का तो नहीं है 12th में, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक पूरा चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा आ जाता है फील्ड एमिशन। तो उसमें हमने कह दिया, मान लिया ये हमारे पास कोई बॉडी है जिस पर हमने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, जैसे लाइक कंडक्टर ही हम लोग कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने कह दिया पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमने इसके पास बहुत बड़ी सी बॉडी रख दी जिस पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इस पे अपनी क्लोजर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, तो इस वाले अनचार्ज बॉडी भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो अब हमारा चार्ज का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाएगा कि ये पॉजिटिव पीछे आ गया और इधर की साइड हमारा नेगेटिव आ गया। तो अगर वो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है अगर इस बॉडी पे, ठीक है, मीन्स इस पर हमने कह दिया स्मॉल क्यू है, इस पर हमने कह दिया कैपिटल क्यू, एंड कैपिटल क्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ग्रेटर देन स्मॉल क्यू। तो बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल लीव द सरफेस। तो उस केस में भी हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो दैट देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग आवर बॉडी। बस इस चैप्टर में जो हम लोग डील कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, जो रबिंग वाला आ रहा है। फिर नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है हमारा, इंडक्शन। इंडक्शन में हमने क्या किया, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, जो हमारी न्यूट्रल थी थ्रू आउट पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पास हम एक रॉड लेके आए जिस पे से पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे ही हम इसके पास लेके आएंगे अब हमारा क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, तो इसके इस साइड पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये वापस चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बॉडी अगेन न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज को कहीं रिप्लेस कर दें, ठीक है, लाइक मैंने हम कह दिया कि इसका हमने एक और कंडक्टर जो है, लाइक हमने कह दिया मेटल 1 है हमारा, दिस इज 2, तो 1 के पास में हमने एक 2 उसको टच करा के रख दिया, तो ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। जितना पॉजिटिव और नेगेटिव जितना पॉसिबली दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाएंगे। अब हमने इसको यहीं रखे रहने दिया, इन दोनों स्फेयर्स को अलग अलग कर दिया, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इसको हमने अब हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्फेयर पॉजिटिव, एक स्फेयर नेगेटिव, तो अगेन दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, कंडक्शन। कंडक्शन के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, मान लिया से हमारे पास एक ये बॉडी है जिस पे हमारा से नेगेटिव चार्ज है, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हमने एक दूसरा स्फेयर है जो हमारा न्यूट्रल था। अब अगर हम इन दोनों को टच करा देंगे तो ये नेगेटिव जो रिपेल कर रहे थे वो सरफेस पर थे, उससे ज़्यादा उनके पास ऑप्शन था ही नहीं कहीं दूर जाने का। तो जब हमने टच कराया तो उन पर स्पेस आया, और दूर भाग सकते हैं, तो आधे इधर आ गए आधे इधर आ गए, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। तो अगर दोनों आइडेंटिकल हैं स्पेस, मींस जिनका मतलब साइज वगैरह एवरीथिंग सेम है, तो अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई वी से दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। डिस्कस थिंग्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब रिकॉल करो, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के क्या आई थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब उनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो कूलम्स लॉ जो है बेसिकली उस फोर्स का वैल्यू हमें दे रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। लाइक अगर हमने कहा दो चार्जेस है हमारे पास, ये Q1 है, ये हमने कह दिया Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, राइट। तो कूलम्स लॉ इज सेइंग कि जो फोर्स की वैल्यू है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो इट इज़ गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। मीन्स कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो दैट्स वाई इसलिए हम इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली मतलब ये बता रहा है हमारे पास कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है तो वो किस तरह से इस इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट करेगा, मीन्स उसके वजह से वैल्यू कैसे हमारे क्या इफेक्ट आएगा, कैसे इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, जो भी रीज़न आ रहा है कि मीन्स बेसिकली वो इफेक्ट क्या इफेक्ट आएगा, राइट। तो नॉर्मल केस में हम लोग कहते हैं जब एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं तो ये सिंबल का जो मीनिंग है वो है एप्सिलॉन, मीन्स प्रोनाउंसिएशन वाइज हम लोग कहते हैं। नॉट लगाने का मतलब फ्री स्पेस और वैक्यूम, और वी कैन से एयर ऑल्सो। लेकिन अगर कोई और मीडियम होगा देन वी हैव द डिफरेंट टर्म, राइट। अब यहाँ पे पहली चीज़ समझो कि यहाँ पे जो हमने फोर्स का ये मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, यहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं। पहला कि यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला हमको क्या दे रहा है, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मीन्स यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा, तो क्योंकि इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म है। तो अब नाउ वी हैव टू कम टू द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो कांस्टेंट है हमारा, इसको हम के से भी कुछ बुक्स में डिनोट कर रखा है। तो वी कैन से के Q1 Q2 अपॉन r² इंटू यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर क्या हो गया, अब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा दोनों चार्जेस हैं, तो ये एक्ट तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे करेगा कि लाइक अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट करता। तो दैट मीन्स जो लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, लेकिन या तो टुवर्ड्स Q1 है या अवे फ्रॉम Q1 है। दैट्स व्हाई वी से कि यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम Q1 के फोर्स को ले रहे हैं या Q2 के फोर्स को लेने हैं, बट लाइन ऑफ एक्शन दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग कहते हैं, अब इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी वाइज अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम दूसरा फॉर्म हमारा क्या हो सकता है कि अगर हम इसे वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, r3।
सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ अगर हमारे क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड एक नॉर्मल वे में कैलकुलेट करें कि डिपेंडिंग अपॉन कि लाइक फॉर एग्जांपल फोर्स हमारा लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक चार्जेस हैं, लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली डिफरेंट फोर्सेस की हम डायरेक्शन निकाल लें। एंड फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम नेट फोर्स उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ ये समझने की है कि हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, प्लस ये जो हमारा फोर्स है ये एक्ट करता है लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पे। सेकेंडली ये हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए जो वर्क डन है हमारा सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स 11th में भी पढ़ रखा था, एक हमारा था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दैट में हम लोग कहते हैं जब भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा या सेंट्रल फोर्स होगा तो हम लोग कहते हैं उसके साथ एक हमारी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड हमेशा होती है। तो वो हम यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये पहला फॉर्म हम लोग कहते हैं, जो पहला हमारा जो स्टेप आ रहा है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दैट इज K इंटू Q1 Q2 अपॉन R3। ये K एक स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट नहीं है, ये याद रखना है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हमेशा लास्ट स्टेप पे आपको K की वैल्यू 1/4πε0 पुट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूलों को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग कहते हैं, अब यहाँ पे हमने कह दिया ये सिचुएशन कब थी, जब हमारा दोनों चार्जेस के बीच में हमारा एयर था या वैक्यूम था। अब मान लिया से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्ज हैं। अब हमने कहते हैं जब हम उस पर आते हैं कि बेसिकली जो लिमिटेशन है, तो हम लोग कहते हैं कि जो कूलम्स लॉ है हमारा बेसिकली ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, सेकेंडली स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अब से फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं थे, हमने दो स्फीयर ले लिए, से फॉर एग्जांपल मेटल के ही ले लिए, इस पे चार्ज हमारा मान लिया Q1 है, इस पे चार्ज हमारा Q2 है, डिस्टेंस हमारे दोनों के सेंटर्स के बीच का से हमने कह दिया R है। अब क्या होगा अगर से दोनों पे सेम चार्ज होगा, मतलब सेम काइंड लाइक दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है, तो क्या होगा यदि पास पास अगर हैं तो ये रिपेल करेंगे। इसका मतलब इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, जितना दूर वो भाग सकते हो उतना भागेंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हम डिस्टेंस ले रहे थे R, अब डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं शिफ्ट होगा, इसका इधर होगा, तो जो हमारा नेट डिस्टेंस होगा R इफेक्टिव अगर हम कहते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, ग्रेटर देन R। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स कुछ वेरिएशन आएगा कि जो फोर्स होगा हमारा वैल्यू वाइज हमारा जो फोर्स है कुछ कम निकल के आएगा। सेम वे अगर हमारे ये अपोजिट चार्जेस होते, लाइक अगर ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव तो था ही था, इसका नेगेटिव इधर साइड आ जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव लेस देन R। सो दैट वे वी से कि हमारे इस केस में जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल फोर्स से डिफरेंट आएगी। दैट्स व्हाई वी से इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस से मतलब क्या हो गया कि जिनका जो अगर हमने कह दिया मान लिया एक मेटल स्फीयर यही लिया, इसका रेडियस हमने कह दिया 1 सेंटीमीटर है, तो जो डिस्टेंस है ये R शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस R0 जो हमारा रेडियस है। मीन्स दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस इज मच मच मोर देन द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वी कैन ट्रीट दोज ऑब्जेक्ट्स एट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सेम वे यहाँ पे है। तो अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट हमने लिया कि लाइक स्फीयर 1 स्फीयर 2 जो भी हम ले रहे हैं उसके रेडियस इस डिस्टेंस से बहुत कम है, तो हम लोग उनको एज ए पॉइंट चार्ज हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने कहा जो हमारा एयर में जो फॉर्मूला आ रहा था वो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारी प्रॉब्लम कि अगर हम मान लिया से हमने इन दोनों के बीच में कि मीन्स जो हमारे चार्जेस थे Q1 Q2 उनके बीच में कोई मीडियम डाल दिया। सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमने कह दिया उसको उठा के वाटर में डाल दिया, तब हमारा क्या होगा, ये हमारा Q1 है, यहाँ पे हमने कह दिया मान लिया से Q2 था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली पोलराइज हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स अब इसके पास पास तुम्हारे डाइपोल बन जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, एक इधर आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, एक इधर दिखा दिया एक इधर दिखा दिया, मतलब 3-4 दिखा रहे हैं, बाकी तो थ्रू आउट होगा, ठीक। यहाँ पे इसका मतलब अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उस चार्ज को अफेक्ट कर रहे हैं। सेम वे अगर यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमने कह दिया पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट वे यहाँ से भी आप अगर चाहो तो दिखा सकते हो कि मीन्स जो नेगेटिव चार्ज Q2 है वो वाटर के जो पॉजिटिव पार्ट है उसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो है नेगेटिव वाला जो है हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो दैट में हम लोग ये कह रहे हैं इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, इसका मतलब हमने कहा जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो पोलराइज हो गए, पोलराइज होने से उन्होंने Q1 एंड Q2 के जो नेट वैल्यू थी उसको अफेक्ट किया। तो दैट में हम लोग कहते हैं इस पोलराइजेशन वजह से जो नेट वैल्यू है Q1 Q2 की वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, इसलिए हम लोग कहते हैं जो हमारा नेट फोर्स होगा वो हमारा F से कम होगा। अब वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा सराउंडिंग मीडियम है वो हम कितना पोलराइज हो सकता है। तो इसलिए इन जनरल हम कहते हैं कि ये हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी फाइनल एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन r इज कॉल्ड योर रिलेटिव परमिटिविटी, मीन्स कि जो हमारा उसको हम एयर से कंपेयर कर रहे हैं कि लाइक मीडियम की जो परमिटिविटी है उसका एयर से अगर हम रेशो लें तो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और इस वैल्यू को हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। के हमारा कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी अगर हमने किसी मिड लाइक अगर हमने यहाँ से कहा कि जो हमारे चार्जेस की वैल्यूज़ थी और जो उनके बीच का डिस्टेंस था उसकी वजह से अगर हमने फोर्स कैलकुलेट किया तो उससे ओरिजिनल फोर्स हमारा F0 था। तो इफ वी पुट इट इन अ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, देन नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा F0 अपॉन K। इट मीन्स नाउ दिस फोर्स विल डिक्रीज। कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। मटेरियल का मीन्स कितना उसमें पोलराइजेशन हो सकता है। अगर हमने कंडक्टर रख दिया, ठीक, तो मालूम अगर इसके पीछे हम कंडक्टर रख देंगे तो कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो कर सकता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसके लिए कंडक्टर के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारा कितना होता है इनफाइनाइट। तो दैट में हमारा जो फोर्स होगा कि वो चार्ज फ्लो कर जाएंगे तो वो वहीं पे रहेंगे ही नहीं अपनी पोजीशन पे। तो दैट में हम लोग कहते हैं वो याद रखना है कि जो हमारे इंसुलेटर्स हैं वो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं, उनके लिए हमारी वैल्यू F0 अपॉन K है। अगर कंडक्टर रख दोगे तो K की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो F डैश कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब जो हमारा फॉर्मूला आ रहा था F इज K योर अपॉन r स्क्वायर। तो नॉर्मल केस में अगर उन्होंने क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई किया है कोई भी मीडियम तो आप उसको एयर मान के सॉल्व करोगे। तो पहला केस क्या हो सकता है कि एक जनरल सिंपल सा उन्होंने केस दे दिया कि दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कि सिंगल उन्होंने टू चार्जेस की वैल्यूज़ दे दी एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द फोर्स। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि सिंपल वैल्यू दे दी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया ये दे दिया 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे दे दिया 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस उन्होंने कह दिया से 10 सेंटीमीटर, ठीक, एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो हम जिसको हम के से भी एट टाइम नोट कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दी होगी, तो इसलिए अगर याद नहीं भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर में दी होगी, उसको आप अप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हो। एंड जो भी वैल्यू चार्जेस की दी हैं वहाँ पे या डिस्टेंस की दी हैं उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू हमने कह दिया 4 × 10⁻⁶ अपॉन 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी वैल्यू आएगी लाइक हमारी इस केस में आ सकती है 9 × 72 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12, ये 10⁻⁻2 हुआ, ऊपर जाके 10⁻2, तो 10⁻2 10⁻9 10⁻11 और यहाँ डेसिमल लगा दिया तो 7.2 न्यूटन हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं दिस वे। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया, राइट, कि दे आर आस्किंग यू कितना फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा। सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि अब हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मान लिया उन्होंने कह दिया कि ये चार्ज हमारा Q1 है, यहाँ पे उन्होंने कह दिया चार्ज
Q2 है, कुछ वैल्यू ले लो लाइक से 4 मिली कूलम, ये पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पे हमने कह दिया से 5 माइक्रो कूलम, ये नेगेटिव का चार्ज है। इनके माल्य से उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, से फॉर एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं 2, 3, 5। यहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेट दे दिए से, यहाँ -2 कर दो चलो, जस्ट टू क्रिएट द कॉम्प्लिकेशन, 4, 1, 2 एंड दे आर आस्किंग कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा। तो यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। तो हमारे वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी, r2 माइनस r1। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, 4 माइनस 2 मीन्स 6i कैप, प्लस 1 माइनस 3 तो -2 j कैप, 2 माइनस 5 तो -3k। ये याद रखना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस नहीं दी है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम आई जे के फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल दें आर का, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो √49, दैट मीन्स 7 मीटर। अब हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 10 पावर 9, Q1 Q2 तो हमारा हो गया 4 × 10 पावर -3 × 5 × 10 पावर -6 अपॉन r3। इधर इसकी वैल्यू थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक, इंटू वेक्टर आर हमारा कितना था, 6i - 2j - 3k अपॉन r3, ठीक। तो वैल्यू वाइज 7 का क्यूब। तो वैल्यू सॉल्व कर दो इसको अब, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 पावर -3, 10 पावर -6 से 10 पावर 9 कटा, 36 × 5 अपॉन 7, 49 × 7, 6i - 2j - 3k, इसको सॉल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन किस वे में दिया है, लाइक डायरेक्ट डिस्टेंस दी है कि दो चार्जेस के बीच में 10 मीटर है, 2 मीटर है, वैल्यूज़ दिए हैं चार्जेस की, उसके हिसाब से कैलकुलेट करा रहे हैं, या आपको कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिया है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप उस तरह से भी निकालते हो, जैसे लाइक हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि k Q1 Q2 अपॉन r², तो हमें डायरेक्शन जरूर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लाइक अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे तो टुवर्ड्स Q1, रिपेल करेंगे तो अवे फ्रॉम Q1, दैट वे हम डायरेक्शन जरूर देंगे। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा आई जे के जो हमारे कैप है, तो ये यूनिट वेक्टर्स है, उसके फॉर्म में हमारा डायरेक्शन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो यहाँ आपको अलग से आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने कहा कि जो हमारा फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट हमने चार्ज क्यू रखा, इसके आसपास 3-4 चार्ज लगे, लाइक हमने कहते हैं एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक यहाँ पे था Q2, तो ये जो फोर्स है जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा इस लाइन के अबाउट, ठीक। सेम वे अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस लाइन के अबाउट, तो चाहे दूसरा चार्ज हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। सेम वे हमने कहते हैं यहाँ पे Q3 रखा है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, तो दैट वे वी कैन से कि नंबर ऑफ फोर्सेस हो गए, ये हमारा F1, दिस साइड F2, दिस साइड F3। तो अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे वेक्टर सम, मीन्स जो क्लास 11th में हम लोगों ने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो अप्लाई करेंगे। अब देखो उसको कैसे अप्लाई करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मान लिया हमने कह दिया हमारे पास ये चीज़ दी है, ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया चार्ज Q है, ये चार्ज -Q है, ये एक चार्ज +Q है, इसको ABC मार्क कर दो A। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मान लिया हमने कह दिया हमारे पास ये चीज़ दी है, ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया चार्ज Q है, ये चार्ज -Q है, ये एक चार्ज +Q है, इसको ABC मार्क कर दो A, B एंड C। अब से डिस्टेंस हमने कह दिया साइड ऑफ जो ट्राइंगल है वो A है। क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे वाले से पॉइंट A पे जो चार्ज रखा है Q पे, कि फाइंड नेट फोर्स ऑन A, मीन्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट
ए। तो पहले इस चीज़ हमें क्या देखनी पड़ेगी कि इस चार्ज पे हमारे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला फोर्स देखो, ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा, इसको हमने नाम दे दिया एफ बी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर हमारी आ गई वैल्यू सी। अब ये मालूम है जो हमारा ट्रायंगल है इक्विलेटरल है, तो एवरी एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक, तो हमने अगर एक हम BC के पैरेलल एक लाइन बना लें, तो ये हमने कह दिया से फॉर एग्जांपल ए डी। तो अगर पैरेलल बनाएंगे तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 60, ये एंगल कितना हो गया 60। ठीक है, तो अब हमारे पास दो फोर्सेज हैं। अब देखो दोनों में चार्जेस का Q एंड Q है, इधर भी Q एंड Q है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इधर से भी A हो गई और इधर से भी A हो गई। तो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो हमने कह दिया FB का मैग्नीट्यूड एंड FC का मैग्नीट्यूड दैट इज KQ² अपॉन A² है। अब दो फोर्सेस हैं, दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है 120। तो हमने वैल्यू निकाल दी कि नेट फोर्स F विल बी अंडर रूट पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से FB² प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2FB FC cos 120। FB एंड FC बराबर हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स FC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स FC का स्क्वायर इंटू -½ का स्क्वायर रूट, ये 2 and ये 2 कैंसिल, तो 2FC का स्क्वायर माइनस FC का स्क्वायर मीन्स फाइनल वैल्यू FC। डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं एग्जैक्टली, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा मिड पॉइंट मीन्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू है 120 है, तो 120 का हाफ कितना हो गया 60, तो वी कैन से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम FB टुवर्ड्स FC। और अगर डायग्राम से देखो तो वी कैन ऑल्सो से कि लाइन पैरेलल टू BC, the direction is B2C along a line parallel to BC because line AD is parallel to BC। तो अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लिया से हम लोग कंपोनेंट मेथड लेंगे कि 11th में कंपोनेंट भी तो पढ़े थे। तो अगर इस फोर्स का मैग्नी कंपोनेंट निकालें तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा FC sin थीटा, थीटा हमारा 60 है, और इधर हमारा आ गया FC cos 60। सेम वे यहाँ पे FB sin थीटा, FB cos थीटा। ठीक, तो इसका मतलब जो दोनों cos वाले साइड्स वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम साइड में हैं, और जो sin वाली वैल्यूज़ हैं वो अपोजिट हैं। इसको रब कर दो जो वैल्यू क्वेश्चन लिखा था ताकि क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसमें हमने कह दिया कि इसी साइड हमारा ये 60 डिग्री एंगल है, तो इसको थोड़ा सा इधर दिखा दो ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो कि जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली थी यही हमारा FC cos थीटा है और यही हमारा FB cos थीटा है। ठीक, लेकिन जो साइन वाला कंपोनेंट है FB का ऊपर है, FC का नीचे है। इसका मतलब जब ओवरऑल Y कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि FB एंड FC बराबर मैग्नीट्यूड के थे, तो साइन भी दोनों के लिए 60 है, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो हमने कह दिया FB की वैल्यू कितने हो गए F/0। FX क्या है, दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही है, तो 2 टाइम्स FB cos 60। तो वैल्यू निकाल दो, 2 FB cos 60 की वैल्यू आपने दे दी, वैल्यू याद है cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये कैंसिल। तो FX इज FB, तो नेट फोर्स दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है, FX² प्लस FY² तो दैट इज FB मीन्स अगेन द सेम वैल्यू आएगी KQ² अपॉन A²। डायरेक्शन हम लोग कह सकते हैं जो कॉस वाले कंपोनेंट हैं, तो आपने कह दिया अलोंग अ लाइन पैरेलल टू BC। इट मीन्स यहाँ पे अगेन बता दिया, चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। बस कंपोनेंट मेथड का एक थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि जो CBSE बोर्ड के हम क्लास 12th की बात करें तो हाँ वो IJ के फॉर्म में आंसर नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ है कि जरूरी नहीं है एंगल हमारा एग्जैक्टली बराबर हो, एंगल हो सकता है बराबर हो तो मैग्नीट्यूड हमारे FB एंड FC के डिफरेंट हो सकते हैं। कि हो सकता है यहाँ पे हमारा चार्ज मान से 5 माइक्रोकूलम दिया है, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम दिया, तो FB FC के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर एग्जैक्टली तो नहीं डिवाइड करेगा ना एंगल को, तो उस केस में हम लोग कहते हैं। और दूसरी चीज़ हो सकता है हमारे पास 3 फोर्स लग रहे हों,
3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो दैट में हम लोग कहते हैं कि कंपोनेंट मेथड हमारे लिए थोड़ा सा ईजी पड़ता है, कि उस केस में क्या है कि हमने ओवरऑल अगर हमारे पास 4 भी फोर्स लग रहे हैं, सबका एक्स कंपोनेंट निकाला तो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, तो एज ए स्केलर हमने ऐड कर दिया। सेम वे वाई कंपोनेंट निकाला, एज ए स्केलर सबको ऐड कर दिया, एंड ओवरऑल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, √fx² + fy²। एंड डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं कि tan थीटा इज fy/fx। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था, वैन जहाँ हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला था। तो तो सीबीएसई में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उन्होंने 3 या 4 फोर्सेस दिए भी हैं, मीन्स जहाँ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि एक नेट वैल्यू ऑफ फोर्स की और डायरेक्शन की दे रहे, मीन्स आईजे के फॉर्म में नहीं, तो कॉम्पिटिशन में भले ही वो आईजे के फॉर्म में ले लें, लेकिन यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर वैल्यू। इसी में हम लोग कई तरह से वैल्यूज़ बना सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इसी में सीबीएसई में उन्होंने 3 मार्क में क्वेश्चन दे दिया था बोर्ड में, लाइक उन्होंने कहा ये ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल को उन्होंने कह दिया यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी थी कि लाइक यहाँ पे -100 का माइक्रोकूलम से कि नेट फोर्स ऑन ये कितना होगा। इफ़ यू सी दैट डायग्राम, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60, तो ये ऊपर वाला 60 और ये नीचे वाला 60, ठीक, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरी चीज़ अगर हम बी का देखें एफ बी, तो उसके लिए पेयर क्या है 1 and 100, सेम वे एफ सी के लिए भी सेम है 1 and 100, तो मैग्नीट्यूड वाइज एफ बी एंड एफ सी इक्वल होंगे। वैल्यू कितनी होगी, एफ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ सी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या होता है KQ²/A²। वैल्यू पुट कर दी 9 × 10⁻9, क्यू कितना है 1 × 10⁻6, 100 × 10⁻6 अपॉन जो साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है, एवरी साइड इज 10 मीटर, तो आपने कह दिया 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर एंड ये 100 कट गया, तो वैल्यू क्या आई 9 × 10⁻³ न्यूटन। ये एफ बी एंड एफ सी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। देन नेक्स्ट हमने निकाल दिया एफ एम। अब ये मालूम है, ये याद रखना है कि जब मिड पॉइंट को इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए ए एम, चॉइस हमारी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके हम साइन थीटा निकाल दें, या हम पाइथागोरस लगा दें कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर। तो हमें ज़्यादा स्टेप करके नहीं दिखाने उसके लिए, ठीक है, कि ज़्यादा स्टेप दिखाओगे उसके मार्क्स नहीं होंगे। तो हमने कह दिया कि हमारी ए एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे √, हमने कह दिया 100 -25, तो √75 मीटर। इसको निकालने के ज़्यादा स्टेप नहीं है, अगेन बता दिया डायरेक्ट वैल्यू निकालो, चाहे जैसे भी निकालो। अगर आपने कह दिया साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज sin 60, sin 60 √3/2 करके आएगी, सॉल्व कर दोगे तो हो सकता है 5√5 आ जाए, यहाँ पे 5√3, तो वो भी √75 ही होता है। तो वैल्यू निकाल दी इसकी, तो हमने कह दिया 75 9 × 10⁻9 इंटू हमने कह दिया 1 × 10⁻6, 75 × 10⁻6, डिस्टेंस कितनी थी √75 का स्क्वायर, तो वो जो ये 75 से कट गया। अगेन हमारी वैल्यू आ रही है 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, अब हमने कह दिया नेट फोर्स, अब हम कंपोनेंट से गए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ सी cos 60, एफ बी cos 60, दोनों इधर ही आ रहे हैं, एफ सी sin 60 इधर आएगा एंड एफ बी sin 60 ऊपर आएगा। इसको कूलम्स लॉ टॉपिक हटा देते हैं। ठीक, तो यही ऊपर की साइड ही हमारा एफ बी sin 60 आएगा। तो अब क्योंकि एफ बी एंड एफ सी के मैग्नीट्यूड सेम थे, तो एफ बी sin 60 एंड एफ सी sin 60 कैंसिल कर देंगे, तो हमने कह दिया ओवरऑल एफ वाई हमारा कितना आएगा, एफ एम, वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻³ न्यूटन। एफ एक्स की बात करें, दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 2 टाइम्स एफ बी cos 60, इट मीन्स 2 × एफ बी हमारी कितनी थी 9 × 10⁻³ इंटू cos 60 हाफ, दोनों वैल्यू सेम है,
अब हमने सिंपल सॉल्व कर दिया कि एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों की वैल्यू हमारी कितनी है 9 इंटू 10⁻³ तो हमने कह दिया एफ की वैल्यू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बिकॉज दोनों के बीच जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री एंड cos 90 हमारा कितना होता है 0। तो जो हमारा 2f(x) fy cos 90 वाला टर्म आ जाएगा वो हो गया 0। नाउ एफ एक्स एंड एफ वाई सेम मैग्नीट्यूड के थे तो वैल्यू कितनी होगी एफ एक्स इंटू √2, इट मीन्स 9 इंटू √2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्शन tan थीटा हमने कह दिया एफ वाई अपॉन एफ एक्स, दिस इज 1, दैट मीन्स 45 डिग्री फ्रॉम अ लाइन पैरेलल टू BC, मीन्स जो इस केस में हमने AD दिखाई है तो AD हमारी क्या है BC के पैरेलल एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हमारा नेट रिजल्टेंट आएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स में दिया था। तो अगेन एंड अगेन हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा एप्लीकेशन क्लियर है कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हमारे और एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि एक हमारा ये चार्ज पार्टिकल है, इसमें कुछ भी वैल्यू दे दी उन्होंने, मान लिया से कैपिटल Q है, इसके अराउंड हम चाहते हैं, ये एक उन्होंने पाथ दिखा दिया, ये डायमीटर दिखा दिया, यहाँ पे हमारे एक स्मॉल Q है, तो हम स्मॉल Q को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहे, मीन्स रिवॉल्व करता रहे। तो एक याद रखो जब क्लास 11 में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि अगर बॉडी गोल गोल घूम रही है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है जो 11th वाला था mv²/r। तो यहाँ पे हमको ये देखना है, हमने कहते हैं वेलोसिटी अगर मान लिया ऐसे हमने कहते हैं v प्रोवाइड करनी है तो हमें बस ये देखना है कि वो फोर्स जो सेंटीपिटल रिक्वायर्ड है वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में कोई और फोर्स तो है ही नहीं, वो फोर्स क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वैल्यू क्या आ गई kq²/r², जहाँ हमने कह दिया रेडियस r है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। ये चीज़ क्लियर है। तो हमारी वेलोसिटी v की आ गई, तो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा √k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r इंटू m। इसी में वो कह दिया मान लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालो, तो हमने कह दिया टाइम पीरियड क्या होता है 2πr में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड अपॉन v। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो हमने वैल्यू दे दी, इट मीन्स v अपॉन 2πr। अब v की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो 1 अपॉन 2π √ हमारा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m इंटू r। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, कोई सा भी मेथड लगाएंगे आंसर सेम आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। इसके साथ एक और चीज़ जो हम लोगों ने एक बार देखा था एग्ज़ाम में, उन्होंने पूछा था सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, उन्होंने कहा इसका हमारा यूनिट क्या होगा प्लस हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है, कई बार ये कॉम्पिटिशन नीट में भी पूछा गया है, जेईई मेन में भी पूछा गया है। तो हम लोग कहते हैं हमने फॉर्मूला क्या लगाया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट को एक साइड रखें तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1/4π r² Q1 Q2 अपॉन f। तो हमारी यूनिट क्या बनी, यूनिट एप्सिलॉन नॉट की हमारी आ गई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिकॉज जो 4π है ये हमारा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब जब हमने यूनिट निकाल ली तो डायमेंशन हम कहते हैं, डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो हमने कहते हैं कूलम स्क्वायर क्या है करंट का यूनिट, तो चार्ज हमारा क्या होता है I इंटू टी, तो हमने कहते हैं I इंटू टी का स्क्वायर अपॉन न्यूटन हमारा फोर्स है तो mL/T-2 फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स L²। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी m-1 L पावर -3 T पावर 4 I पावर 2। तो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर एप्सिलॉन नॉट। तो प्रॉपरली रिवाइज करना, जो डाउट्स हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे। राइट, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।